Okay, now let's talk about investor expectations and funding stages. While we will learn about the funding stages one by one, we'll take just 5 minutes time to understand an investor expectation. See, we need to understand that any business or any investor is seeking one thing, that is profit, positive revenue, uh, good, healthy exit. And while they are invested, a good, decent business, uh, fair business, legal, right? With no, irregularities or, not making mockery of the law and the citizens of our system or our customers or our, people whom we are giving service to. So this is a very basic thing, right? In nutshell. But, investors are also expect one more thing from a business, that when they invest in your business, at the same time they have invested in multiple other businesses as well. So their expectation is very simple, is that while they are invested in other businesses, your business has to be a proven track record for them, right? And let's assume that one investor invested in 10 businesses. So for them, if every business is a proven track record, so the more lucrative businesses will come to them, and their organization or their system will also grow, right? We need to understand. So let's keep our value as X in this scenario. And for us, we have to provide them a sustainable business model with good revenue, nice exit, has to be legal, and should provide them a proven track record, so that, like a testimony for them as well, that we have invested in this business and we made this business from X to Y to Z. Investors seek a compelling story, a robust business model, and clarity on return potential. This is what we have discussed, right? See, for any business and for any entrepreneur, it is very important that they should deliver what they say. They should deliver what they promise to their consumer and their investors. And sometimes, uh, I just want to add this thing here, that sometimes it happens that business might fail, but an entrepreneur should not fail, right? Because any investor who comes on board, they always look for a quality in an entrepreneur, is that how good is that individual in soaking the pressure, taking risk, and ability to keep going on, right? Irrespective of personal and professional problems, hurdles. And it happens that uh, sometimes some businesses flop, but entrepreneurs don't, and they keep on doing things and they achieve heights. I mean, there are thousand examples like that, and investors always show interest in them. Why? Because they know that this entrepreneur has that element. This entrepreneur has been, very honest to us. This entrepreneur has the integrity. This entrepreneur has the compelling story. This entrepreneur, done everything within the guidelines, within the, uh, under this entrepreneur is a law-abiding citizen. So all these factors are very, very important, and these are the basic investor expectations. Now we'll discuss about the funding stages one by one. And while we learn about the funding stages, we will also understand that, you know, at what stage any business move to the another series of funding, right? So first is pre-seed stage. The pre-seed stage is typical investors like founders, friends, and family. We have discussed, like angel investors, right? यहाँ तो अपना पैसा लगाते हो एज अ फाउंडर, दोस्तों से लेते हो, फैमिली से लेते हो, कुछ एंजल इन्वेस्टर होते हैं, दोस्त के दोस्त होते हैं, जो कि
बिजनेसमैन है, सीजन्ड है, उनको पता है, पर वो आपको पैसा दे देते हैं, राइट? वो किस स्टेज में होता है? जब आपकी कंपनी का या तो आइडिया होता है या प्रोटोटाइप होता है या फिर प्री रिवेन्यू होती है। यही यूजली उसके 3 स्टेजेस हैं कि अभी तो आइडिएशन है, आपने सब बना लिया, कंपनी का नाम वगैरह रख लिया है, आपने रजिस्टर करा लिया, आप आइडिया पे काम कर रहे हो, आपको आइडिया पे काम करने के लिए पैसा चाहिए, देन यू गो टू द एंजल इन्वेस्टर्स। दैट्स हाउ इट वर्क्स। फंडिंग का जो अमाउंट है वी हैव मेंशन्ड इन डॉलर्स, बिकॉज़ जो हमारी ग्लोबल, आपको पता है कि जो करेंसी है जिसपे ये सारा लेन-देन होता है वो डॉलर्स ही है, तो हमने यहाँ पे वही रखा है। सो इट्स $10,000 टू 500 थाउज़ेंड डॉलर्स, राइट? इंडिया में अगर हम देखें तो 8-10 लाख से फंडिंग शुरू हो जाती है। ये प्री स्टेज है, इसको हम कहते हैं प्री सीड स्टेज, राइट? यहाँ पे इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन है स्ट्रॉन्ग फाउंडिंग टीम विद रेलेवेंट एक्सपर्टीज। ऑब्वियसली आप कितने लोग हो, कौन ये बिजनेस कर रहा है, और उनकी एक्सपर्टीज है भी नहीं कि इस बिजनेस की रेलेवेंस की, कि नहीं, अगर है तो बहुत बढ़िया। क्लियर विजन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। और कितनी है, कितनी डीप डाइव आप करके आए हो, मार्केट पोटेंशियल आपको पता है कि नहीं, यूनिकनेस आपको अपने आइडिया की पता है कि नहीं, राइट? अर्ली प्रोटोटाइप अगर है आपके पास, या फिर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है, तो नथिंग लाइक दैट। एंड देन विलिंगनेस टू, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम प्री सीड स्टेज पे होते हैं ना, तो वो एक ऐसी स्टेज होती है कि जहाँ पे ना आइटरेशन का भी एक स्कोप हमेशा ऊपर रहता है, कि अभी बहुत अर्ली स्टेज है, अगर यहाँ पे अगर हमको चेंज भी करना है तो हम कर सकते हैं, राइट? सो यहाँ पे हमने दो चीजें अंडरस्टैंड करी हैं कि प्री सीड स्टेज क्या होती है, हम वो होती है तब जब हमारी कंपनी एक आइडिया या प्रोटोटाइप पे होती है। टिपिकल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? फाउंडर्स, फ्रेंड, फैमिली, एंजल इन्वेस्टर्स बेसिकली, टिपिकली। एंड यहाँ पे इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग फाउंडिंग टीम एंड रेलेवेंट एक्सपीरियंस, क्लियर विजन, मार्केट पोटेंशियल, एमवीपी एंड बिलिंग। सी, प्री सीड स्टेज जो होती है ना किसी भी बिजनेस के लिए, वो एक ऐसी स्टेज है जहां पे हम अपने बिजनेस को टेक्निकली इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। when we are about to introduce or already introduce our business in a very recent times, तो वो इंट्रोड्यूसिंग स्टेज होती है, राइट? देन सीड स्टेज, टिपिकली इन्वेस्टर्स, अगेन यहाँ पे सीड स्टेज में भी एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, सीड फंड्स होते हैं, अर्ली स्टेज वीसीज भी यहाँ पे आ जाते हैं। ये कौन सा स्टेज है? जब एमवीपी इज ऑलरेडी देयर, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट इज ऑलरेडी देयर, और अर्ली अर्ली ट्रैक्शन आना शुरू हो जाता है। इट मींस कि जो बीटा यूजर्स है, यानी कि जो हमारे टेस्ट रन्स हैं या फिर जो हमारे पायलट कस्टमर्स हैं, हमने अपना एक प्रोडक्ट बना के हमने अपने पहले 1000 कस्टमर्स को दे दिया, उनका क्या रिस्पॉन्ड आ रहा है, उनका क्या ट्रैक्शन आ रहा है, ये वो वाली स्टेज होती है। फंडिंग का अमाउंट यूजली करीब करीब 5 लाख डॉलर से तो सॉरी $20 लाख तक रहता है। एंड सी, व्हेन आई एम टेलिंग यू दिस अमाउंट, ये अमाउंट हम एक रेफरेंस के लिए ले रहे हैं, ये कम ज्यादा ऑब्वियसली हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, राइट? ये हमने एक यूजुअल एवरेज प्राइस उठाया है, जो हमारे भी, जो हमने जो स्टडी करी है कि इतना अमाउंट ऑन एन एवरेज चलता है इस स्टेज में। यहाँ पे इन्वेस्टर की क्या एक्सपेक्टेशन है? वैलिडेटेड प्रोडक्ट मार्केट फिट, क्योंकि वो हो रहा है ऑलरेडी, हमारे पास एमवीपी है, बिल्ड हो चुका है ना, अर्ली ट्रैक्शन भी आ रहा है, तो हम ये वैलिडेट कर लेता है इन्वेस्टर की प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं। यहाँ पे हमको मार्केट डिमांड डिमांड का एविडेंस भी मिल जाता है, अर्ली ग्रोथ, यूजर का जो ग्रोथ है वो भी पता चल जाता है कि डेली ज्यादा लोग कर रहे हैं, कम लोग कर रहे हैं, वो पता चल जाता है। हमारी टीम अभी तक कितनी स्ट्रांग रही है और कोचेबल है कि नहीं, क्योंकि ये वो स्टेज है जहाँ पे कि बेस्ड ऑन द ट्रैक्शन हम कुछ इनपुट्स भी लेंगे, और अगर हम उस इनपुट्स पे रेगुलर काम कर पा रहे हैं, इट मीन्स हमारी टीम कोचेबल है ना, क्योंकि हमको वो कोचिंग मिल रही है, हम कर रहे हैं। हमारा बिजनेस कितना स्केलेबल है, कि हमको पता चल रहा है कि अट्रैक्शन तो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब कि कुछ तो है इस बिजनेस आइडिया में, इस एमबीपी में, इस प्रोटोटाइप में, राइट? और अगर ये पॉजिटिव होता जाता है,
कुछ समय तक तो यानी कि वो क्लियर गो टू मार्केट स्ट्रेटजी है कि ठीक है, सही सब कुछ सही चल रहा है तो हम इसको आगे लेके जाते हैं। ये एक इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन रहती है सीड स्टेज में, राइट? दोबारा से, कंपनी की स्टेज क्या है? एमवीपी ऑलरेडी देयर, ऑलरेडी ट्रैक्शन आ रहा है, बीटा यूजर, टेस्ट यूजर्स हैं। इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन क्या है? that we have studied already, है ना? And then we need to understand one more thing, entrepreneurs, that when we enter to the seed stage of our business, वो एक ऐसी स्टेज है जहां पे कि यानी हम अपने प्री सीड का जो पैसा है वो कंज्यूम कर चुके हैं, या फिर उस हम उस पैसे का यूज करके स्टेज पे आए हैं। तो वो जो आपकी सक्सेस स्टोरी है ना, प्री सीड स्टेज के बाद सीड तक आने की, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे प्ले करता है। तो व्हेनेवर यू पिच योर बिजनेस टू सीड स्टेज, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने अपनी प्री स्टेज का जो पैसा है उसको कैसे यूटिलाइज किया है। अगर आप उसका इंफॉर्मेशन सही तरीके से एक्यूरेसी के साथ विद नंबर्स दे सकते हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है, राइट? So that's how the two stages of funding we have learned about. So now let's move to the other stages. Entrepreneurs,